Assalamu alaikum, students. Have your lecture has been finished or it's continued? I think you have finished your previous lecture with sir. So the audio video is clear. Please guide so that we may proceed towards our lecture. Okay. I hope you all will be fine and all will be safe. In this crunch pandemic, it's really tough for you guys as you are working hard for your duties because it is really panic these days as the numbers are growing, so it is creating more panic in fact. So I pray that every one of you remain safe and we safely come out of this epidemic. So what about the biochemistry and what about your test preparation? Your test schedule has been changed and it has been also informed to you, and your test sessions are now on the weekends, Saturday and Sunday. So likewise we have the biochem test on, I think, on Saturday. So get well prepared for the test of protein chapter because you are getting more time now. As far as lipids are concerned, what we are going to study is, I think, lipoproteins and also derived lipids. So hopefully we are going to finish this chapter in the today's lecture, and we will move towards some other biomolecule. But as far as lipid is concerned, it is a very major biomolecule, and there are essential fatty acids, essential lipids which are required. All those who are joining now, I must say that whenever you come on here for your lecture, so your books must be with you, and so that you may also have the chapter of lipids and you can underline some of the important things in the topic, or you can write down some extra things which I may tell on your book so that this is for your record, that whenever you try to learn from your book, you may remember. Those students who are saying no video and no voice, please reconnect because I think my connections are going good and most of the students are listening me, I think. So the students, are you listening me? So that we may proceed, because if some of the students has difficulty, they can reconnect the connection. They can simply reconnect, because sometimes it is because of the signal problem. But still, if there is no voice, okay. If the voice is clear, if the video is clear, then there is no need to worry. So so have you understood the previous lectures of the lipids, or if you find some difficulty, you can simply ask me. We have done with the lipids classification, we have done with the classification of fatty acids, saturated, monounsaturated, polyunsaturated fatty acids. We have done with the vexes, phospholipids, sphingophospholipid, glycolipids, all the classification of the lipids. Now what is basically left behind is the derived lipids and other important compounds which have been modified from the lipids. And one of the important sterol of our body, which is cholesterol, that is also important part of the lipid, because the major sterol which is present in our body is cholesterol. And you all are familiar with the cholesterol, with the functions of the cholesterol, with the normal levels of the cholesterol.
And other things which are related, which we will study in today's lecture, is bile acids and bile salts. You may be familiar with the bile. So, and other derivatives like the prostaglandins, thromboxanes, and leukotrienes. Maybe there are some terms which are new to you people, but we will definitely learn in today's lecture that what are prostaglandins, and what are their functions, what are thromboxanes, their functions, or any disease which can be caused by the deficiency of these lipids. And then the leukotrienes, these are the basically three forms of the derived lipids. So, starting towards the lecture, we have done with the classification, and we have done all these classification of the lipids, and we are about to start the lipoproteins basically. So you can also zoom your screen so that it may be visible to you. So what we are going to study is lipoproteins, because the transportation of the lipids in our body, we are dealing with the transportation of lipids in our body. In order to transport the lipids within the body, there are lipoproteins present in our body. Lipoprotein is a basically terminology which have been made of two words. You will see lipids and protein. So the combination of two words, lipoprotein is the combination of two words, lipids and proteins. So lipoproteins are basically that we can say that these are the transporters of the lipids. So if you see that it is a combination of two things, one is lipid, another is protein. And if the lipid concentration, if the lipid content is more, it means it is dangerous for our body, it is not good for our body. But if the protein concentration is more, then it will be beneficial to our body, because lipids तो इतने अच्छे नहीं है बॉडी के लिए. सो अगर लिपिड्स की कंसंट्रेशन लिपोप्रोटीन्स में ज़्यादा होगी तो ऐसी लिपोप्रोटीन्स हमारी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी. ठीक है, एज यू माइट नो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, IDL, intermediately dense lipoproteins. So you might have heard this. But if the protein concentration is more in lipoproteins, then such lipoproteins are good for our health. And basically, when I talk about our health, it means the heart health. So basically, they are safe for our heart, for our cardiac system. So we are basically, I'm trying to zoom it so that and the order in which the lipoproteins are given in your book, it is also important that you remember the order. Like in the first, it has been given chylomicrons. So and the second they have written VLDL, very low density lipoproteins. So we have to basically also remember the order. It is also important because chylomicrons जब टूटते हैं तो VLDL बनता है. तो आप ऑर्डर याद रखोगे तो आपको लिपोप्रोटीन्स के फंक्शंस भी याद रखने में आसानी होगी बेसिकली. ठीक है, तो ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है. ठीक है, और इन लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो मेजर लिपिड्स होते हैं, और जो इसके साथ जो है डेफिनेटली प्रोटीन इज अटैच्ड, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में क्या करती हैं, लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं. ठीक है, दीज लिपोप्रोटीन्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन आवर बॉडी. अब इसके कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैव बीन गिवन. काइलोमैक्रॉन्स, VLDL, IDL, LDL एंड द लास्ट HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. अब स्टार्ट हम कर रहे हैं जी काइलोमाइक्रॉन से. ठीक है, काइलोमाइक्रॉन से. Chylomicrons, the lipoprotein chylomicrons are basically lowest in density and largest in size of all the blood lipoproteins. ठीक है, इसकी जो है जी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, और साइज इसका जो है वो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा है, बिग है बेसिकली, डेंसिटी इसकी जो है ना दैट इज़ लोएस्ट इन डेंसिटी, और साइज़ इसका बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो है ना वो लिपिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, तो इट विल बी सेफ फॉर आवर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और नॉट? Definitely, it wouldn't be safe for our heart health, because if the lipid concentration is more and the protein concentration is less, so it will be not safe for our cardiovascular health. So basically, they are produced in the intestinal cells from the dietary lipids. आती कहाँ से हैं बॉडी में? जाहिर है जो लिपिड्स हम खाते हैं, जो डाइटरी हम लिपिड्स ले रहे हैं खाने में, पराठे, घी, मक्खन, बटर, चीज़, ऑल द लिपिड सोर्सेज। अब जो इसके साथ ये एपोप्रोटीन्स वाली कहानी लिखी हुई है ना, दैट इज आउट ऑफ योर लाइक सॉरी, बस जो एपोप्रोटीन्स वाली कहानी है, बिकॉज हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। वी विल जस्ट स्टडी द काइलोमाइक्रोन्स, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। और इसमें सेफ कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव रोल किसका है और डिस्ट्रक्टिव रोल बेसिकली किसका है, ठीक है। तो मेजर एपोप्रोटीन्स, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, ठीक है, बिकॉज एपोप्रोटीन इज टोटली अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है, और हम इसको जो है ना वो टच नहीं कर रहे, इसलिए ऊपर वाले पैराग्राफ में भी जो एपोप्रोटीन वाला लिखी थी वो मैंने स्किप कर दिया बेसिकली, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यू पीपल। सो chylomicrons and VLDL are the major carriers of tag। अब टैग क्या है? ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। बॉडी का जो मेजर फैट है वो किस फॉर्म में होता है? ट्राई एसाइल ग्लिसरोल की फॉर्म में होता है, टैग की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने याद रखना है टैग क्या है, क्योंकि वो समटाइम्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, इसकी एब्रीवेशन नहीं लिख रहे होते। दे जस्ट राइट, एग्जामिनर जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज टैग, ठीक है, तो हम इसकी एब्रीवेशन आनी चाहिए, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल है ये, ठीक है। Tag of the chylomicron is hydrolyzed by the lipoprotein lipase enzyme। अब जाहिर है बॉडी में ये लिपोप्रोटीन्स हैं तो ये ब्रेक भी होती होंगी, टूटती भी होंगी, ठीक है। तो जो काइलोमैक्रोन्स को ब्रेक करने के लिए बॉडी में एंजाइम है, क्योंकि लिपिड में जो एंजाइम एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइपेज। इसी तरह से जो लिपोप्रोटीन्स पर एंजाइम एक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। तो लाइपेज इज द जर्नल एंजाइम बेसिकली फॉर ऑल द लिपिड्स, ठीक है। लाइपेज एक जर्नल एंजाइम है जो सारे लिपिड्स पे एक्ट करेगा। अब अगर वो लिपिड हो फॉस्फोलिपिड तो फिर एंजाइम का नाम चेंज हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो स्विंगोलिपिड है तो स्विंगोलाइपेज हो जाएगा। तो ये लिपोप्रोटीन्स हैं तो एंजाइम की नेमिंग इसी तरह से चेंज हो जाएगी, इट विल बी लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे लिपोप्रोटीन को तो फिर आपको क्या मिलेगा दोबारा? डेफिनेटली अब ये जो है जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड से मिलके बने हैं, ग्लिसरोल से मिलके बना है, ठीक है। तो जब आपकी लिपोप्रोटीन, क्योंकि लिपिड्स को कैरी कर रहे हैं, तो आप जब लिपोप्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द लिपिड्स टैग ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल अब दो चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। द वन इज फैटी एसिड एंड अनदर इज ग्लिसरोल। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे वी विल गेट टू थिंग्स, ठीक है, वन इज लिपिड एंड वन इज ग्लिसरोल। So we have the basically two products after the breakdown of triacyl glycerol। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर टैग बनते हैं और यही दो चीज़ें हमें इसके ब्रेकडाउन से मिलेंगी, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल, these are the basically two things which used to make the tag, and these are the two things which we get while hydrolyzing the tags। Fatty acid produced by the chylomicrons and VLDL can either be oxidized to provide the energy or they are converted again into the triacyl glycerols। So fatty acids which have been produced, टैग को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें जो फैटी एसिड्स बेसिकली मिल रहे हैं, ठीक है, या हमें जो ग्लिसरोल मिल रहा है, जो हमें फैटी एसिड मिल रहा है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो हमें एनर्जी दे देगा, ठीक है। तो फैटी एसिड्स हम ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी दे देंगे, और यहाँ फिर ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरोल हमें मिला है इनकी ब्रेकडाउन की वजह से वो दोबारा हमारी बॉडी में लिपिड्स बना देंगे, ठीक है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन कि काइलोमाइक्रॉन्स हमारी पहली तरह के लिपोप्रोटीन्स हैं जिसकी डेंसिटी जो है ना सबसे ज़्यादा कम है, साइज इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें लिपिड्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये मेजर कैरियर है टैग का, हमारी बॉडी के जो न्यूट्रल फैट्स हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। अब ट्राई एसाइल ग्लिसरोल को जब ये कैरी कर रहे हैं तो लिपोप्रोटीन्स ब्रेक होंगी तो टैग उसमें से निकलेगा ना, ठीक है ना। तो लिपोप्रोटीन्स को ब्रेक करने के लिए वी हैव द एंजाइम लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन जब ब्रेक होती हैं, लाइपेज जब एक्ट करता है तो फिर वो लिपोप्रोटीन्स पे नहीं बल्कि वो टैग पे भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरोल को जब एंजाइम ब्रेक करेगा तो दो चीज़ें हमें मिलेंगी, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरोल।
फैटी एसिड या तो ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी दे देगा, या फिर दोबारा कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर दोबारा बॉडी के फैट्स बना देगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली टू प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राई एसाइल कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो नेक्स्ट टेबल पे जो नेक्स्ट पेज पे जो बेसिकली टेबल हैज बीन गिवन, इसमें हम VLDL LDL को तो पढ़ सकते हैं, इनके फंक्शंस को और इनकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, बट ये जो आपका कॉलम है बेसिकली ओरिजिन वी कैन स्टडी के इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। बट ये जो टेबल विच हैज़ बिन जो थर्ड रो है इसकी जो एक्वाप्रोटीन्स वाली कहानी है वो हम इसमें से स्किप कर रहे हैं बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट, ठीक है। तो टेबल अगर तुम लोग करना चाहते हो तो सिर्फ हम उसका वो एक शॉर्टकट है, मतलब कि ओरिजिन क्या है लिपोप्रोटीन्स का, ठीक है, वो हम याद रख सकते हैं, फंक्शन क्या है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने एक्वाप्रोटीन्स बिकॉज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री आपको जो है जी वो अभी नहीं ज़रूरत उसकी। ग्लिसरॉल और काइलोमाइक्रॉन्स एज सो ग्लिसरॉल एंड अब जो ग्लिसरॉल है इसमें बेसिकली ना वो दोबारा जो है जी वो क्या हो जाएगा, या तो वो जो फैटी एसिड तो ऑक्सीडाइज होकर आपको एनर्जी दे दिया, ठीक है, और जो ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा विच इज द बेसिकली पाथवे ऑफ द बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं बेसिकली ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की हैं कि ये जो ग्लिसरॉल हमें फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से मिल रहा है ये फर्दर क्या करेगा कि जब हम ग्लूकोज या शुगरी या कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ खाते हैं, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें भी जो है कि बॉडी में जो अवेलेबल ग्लिसरॉल है बेसिकली वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है साथ में, ठीक है। तो आप ग्लूकोज का जो पाथवे है उसमें भी ग्लिसरॉल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लूकोज के पाथवे में भी एंटर हो सकता है, ठीक है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प आउट कर सकता है। दिस ग्लूकोज can also help in the metabolism of this glycerol can also help in the metabolism of the glucose, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने जो DHAP वगैरह है ना इसको मत चाहे याद रखो, you can simply say this glucose can also enter in the metabolism of the carbohydrates in the metabolism of the glucose, ठीक है जी। Now the another thing is basically if we simply remnants of the chylomicrons are taken up by the liver, ठीक है, जो चीज़ें अब बचेंगी that will be taken up by the liver basically, ठीक है। और हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, there are some lysosomal enzymes basically, ठीक है, जो कि इसके जो लेफ्ट ओवर्स हैं जो रेमनेंट्स हैं बेसिकली उसको क्या कर देंगे, उसको इनगल्फ कर देंगे, उसको जो है जी उसको जो रेमनेंट्स हैं वो डिग्रेडेशन उनकी हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ द लाइसोजाइमल एंजाइम्स। सो दिस इज अबाउट द काइलोमाइक्रॉन्स। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स VLDL, ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन्स में लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। इसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है बेसिकली ये मिलकर टैग बना रहे हैं जिसको लिपोप्रोटीन ये कैरी कर रही है, और इनकी ब्रेकडाउन की वजह से दोबारा हमें फैटी एसिड और फिर ग्लिसरॉल ही मिल रहा है क्योंकि दो चीज़ें ही मिलकर लिपिड्स बना रही हैं, और जब आप ब्रेक भी करोगे तो यही दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होकर हमें एनर्जी दे देगा, और ग्लिसरॉल जो है वो या तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में एंटर हो जाएगा या फिर हम दोबारा उसको फैटी एसिड के साथ जो है मिलके बॉडी में दोबारा फैट्स बना देगा, ठीक है। और जो लेफ्ट ओवर्स हैं इसके वो लाइसोजाइम एंजाइम्स जो हैं उसको इनगल्फ कर जाएंगे। सेकेंड जो हमारी लिपोप्रोटीन है दैट इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स को अगर हम जब ब्रेक करते हैं तो वी ऑल्सो गेट द VLDL, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दे आर नॉट बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ठीक है, लिवर में ये जो बेसिकली जो है दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ठीक है, ये लिवर में भी बनती है, ठीक है। जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हो तो उसके बाद हमारी बॉडी में जो है VLDL भी बनते हैं। अब देखो जो हमारी बॉडी में फैट्स है ना दे कैन बी बेसिकली कन्वर्टेड इनटू शुगरी कंपाउंड्स, जो फैट्स हैं वो ग्लूकोज में भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप
ने चीनी छोड़ दी है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनेगा. द थिंग इज ग्लूकोज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ठीक है, ग्लूकोज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी बॉडी में बन सकता है और फैट से बनता है ग्लूकोज. इसी तरह से जो फैट्स हैं वो भी, अगर तुम लोग ग्लूकोज बहुत ज्यादा लेते हो तो ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो सकता है किसमें, फैट्स में. तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में VLDL की भी प्रोडक्शन हो सकती है और होती है बेसिकली लिवर में. ठीक है, नाउ द बेसिकली VLDL जो है, अब इसमें जो है, इसमें भी प्रोटीन की लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी लेकिन काइलोमाइक्रॉन से कम. VLDL also contains high concentration of basically lipids, but as compared to chylomicrons they have low levels of lipids and more level of proteins. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें VLDL को काइलोमाइक्रॉन से तो इसमें लिपिड्स थोड़े से कम होंगे और प्रोटीन थोड़ी सी ज्यादा होंगी. बट अगर हम ओवरऑल रेशो देखें तो बॉडी के लिए जो इसमें रेशो है वो फिर भी अनसेफ है हमारे कार्डिक और हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए. ठीक है, तो इसमें भी लिपिड ज्यादा हैं और प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली वो कम है बेसिकली. ठीक है, और ये दोनों बेसिकली कैरी करते हैं. ठीक है, VLDL और काइलोमैक्रोन्स दोनों बेसिकली कैरी करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को, टैग को. ठीक है, इसको भी उसी तरह से जब टैग की ब्रेकडाउन होगी, इस पे भी एंजाइम लाइपेज एक्ट कर रहा है, लिपोप्रोटीन लाइपेज, जब ब्रेकडाउन होगी तो हमें ग्लिसरॉल मिलेगा, वही चीज लिखी हुई हमें फैटी एसिड मिलेगा. ठीक है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोबारा मिलकर लिपिड्स भी बना सकते हैं, या फैटी एसिड एनर्जी देने के बाद ग्लिसरॉल जो है फैट्स बनाने के बाद अगर फिर भी बच जाता है तो वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में एंटर हो सकता है. ठीक है, यानी कि हमें पायरुवेट और दूसरे जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इससे मिल सकते हैं. इसके बाद है जी IDL विच इज इंटरमीडिएटरी डेंस लिपोप्रोटीन. इंटरमीडिएटरी डेंस लिपोप्रोटीन IDL. ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द पेरिफेरल टिश्यूज फ्रॉम द VLDL. देखो, काइलोमैक्रोन से VLDL बन रहे हैं, VLDL से फिर IDL बन रहा है, यानी कि वही जो बेसिकली लिपोप्रोटीन्स हैं उन्हीं की ब्रेकडाउन से फर्दर जो बेसिकली बॉडी में जो है वो लिपोप्रोटीन्स बन रही हैं. ठीक है, तो पेरिफेरल टिश्यूज में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो बना रही हैं IDL, इंटरमीडिएटरी डेंस लिपोप्रोटीन. दे आर डेंसर देन काइलोमाइक्रॉन्स, बट देखो अब इनकी डेंसिटी काइलोमाइक्रॉन से ज्यादा है. ठीक है, यानी कि इसमें डेंसिटी उसी की ज्यादा होगी जिसमें प्रोटीन जो है ना वो ज्यादा होगी, ये याद रख लो. ठीक है, तो जो हमारी लिपोप्रोटीन्स है ना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होगी ना उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है. अब मैंने बताया है कि काइलोमाइक्रॉन्स में प्रोटीन कम है तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी कम है. VLDL में भी प्रोटीन्स कम है लेकिन काइलोमाइक्रॉन की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन IDL में थोड़ी सी प्रोटीन ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिपिड्स. ठीक है, थोड़ी सी प्रोटीन ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स. ठीक है, उन दोनों की निस्बत इसकी डेंसिटी थोड़ी सी जो है ना जी वो ज्यादा होगी. ठीक है, बट इट हैज स्टिल हैज द जो इसमें ट्राइग्लिसराइड्स है ना टैग के वो थोड़े से फिर भी ज्यादा हैं. अब जी LDL is produced in the plasma by the degradation of IDL. ठीक है, IDL की जब डिग्रेडेशन होगी तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनेगी LDL. ठीक है, दे हैव द लेस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है, अब इसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ना जी वो कम है और प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू IDL. अगर हम IDL से इसको कंपेयर करें तो इसमें जो है ना वो प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है और लिपिड कंटेंट थोड़ा सा जो है जी वो कम है. बट दे आर द मेजर कैरियर्स ऑफ बेसिकली कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, लेकिन जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली कैरी कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है, तो डेफिनेटली ये बॉडी के लिए LDL जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. दे आर कॉल्ड एज द बैड लिपिड्स. ठीक है, तो LDL आर बेसिकली कॉल्ड एज द बैड लिपिड्स क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं. ठीक है, तो जो चीज कोलेस्ट्रॉल को कैरी करिए जाहिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट अगर ज्यादा है तो दे आर नॉट गुड बेसिकली. तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को बेसिकली ये कैरी कर रहे हैं. इंक्रीज लेवल ऑफ LDL हैव डेफिनेटली अगर इसके इंक्रीज लेवल हो जाएंगे तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए इट विल नॉट बी गुड. अब अच्छा कौन सा है बेसिकली, जितनी लिपोप्रोटीन्स हैं उसमें से सेफ कौन सी है, तो जो सेफ है दैट इज HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ठीक है, दैट इज सेफेस्ट ऑफ ऑल द लिपोप्रोटीन्स. अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है विच एक्सप्लेन लिपोप्रोटीन एंड विच वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड विच वन इज डिस्ट्रक्टिव लिपोप्रोटीन, तो हमारी जो कंस्ट्रक्टिव लिपोप्रोटीन है ना वो एक ही है HDL. ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन.
और जो डिस्ट्रक्टिव लिपोप्रोटीन्स है ना, वो तो तुम लोग कोई भी लिख सकते हो, काइलोमाइक्रॉन्स, कोई भी नहीं, ये जो हैं वही लिखनी है, काइलोमाइक्रॉन्स, VLDL, IDL, ठीक है, HDL, दीज ऑल आर द डिस्ट्रक्टिव लिपोप्रोटीन्स। अब जी HDL जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, ठीक है, लिवर में इसकी बेसिकली सिंथेसिस हो रही है। इसकी मेन प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं मैंने पहले ही कहा, अगर रख सकते हो या तो ठीक है, लेकिन एपोप्रोटीन्स ये होती हैं कि बेसिकली समझ लो इसके साथ एक स्पोर्टिव ग्रुप बेसिकली इन सब लिपोप्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट है, इसका कोर है, क्योंकि इसमें लिपिड भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। तो जो प्रोटीन्स की टाइप सब टाइप प्रेजेंट है ना, वो है बेसिकली एपोप्रोटीन्स, एपो ए, एपो बी, इस तरह से। इसलिए मैंने कहा था कि हम फॉर द टाइम बीइंग वी आर गोइंग टू स्किप द एपो रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। तो वी जस्ट नो कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा सेव है, कंस्ट्रक्टिव पार्ट प्ले कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है जी। तो इसकी लिवर में बेसिकली सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो है डेंसेस्ट लिपोप्रोटीन है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। अब मैंने पहले भी बताया था जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इट इज़ लोवेस्ट इन टैग की कंसंट्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा कम है ट्राइसाइलग्लिसरोल की, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन कंसंट्रेशन है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड लिपोप्रोटीन, जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, या जो HDL हम जिसको कह रहे हैं HDL लिपोप्रोटीन। अच्छा जी, इंक्रीज लेवल्स ऑफ HDL कैन लीड टूवर्ड्स बेसिकली डिक्रीज रिस्क ऑफ द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर नेचुरली, क्योंकि ज़ाहिर इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, तो नेचुरली अगर किसी का HDL लेवल अच्छा होगा तो वो समझ लो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है HDL, ठीक है, तो उसको हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ठीक है, इनके चांसेस जो है ना नेचुरली जो है ना उसको कम होंगे, ठीक है। रिस्क जो है उन लोगों में हार्ट डिजीज एक्वायर करने का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। और नेचुरली जो है फीमेल्स में जो है ना वो HDL के नेचुरली लेवल्स बेसिकली ज़्यादा होते हैं, ठीक है। HDL के लेवल्स जो हैं फीमेल्स में नेचुरली ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, रनर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सनस, बेसिकली शायद उनकी विगरस एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, उनमें भी जो है HDL के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि एथलीट्स और जो फीमेल्स हैं दे आर एट लोअर रिस्क ऑफ बेसिकली एक्वायरिंग द डिजीजेज ऑफ कार्डिक सिस्टम, ठीक है। तो कार्डिक सिस्टम की जो डिजीजेज हैं एथलीट्स में और फीमेल्स में जो है वो उनका चांस कम होता है, क्योंकि उनमें HDL के लेवल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीमेल है तो जी उसमें HDL के लेवल ज़्यादा हैं तो अब आप जो मर्जी खाते रहो, जितना मर्जी कोलेस्ट्रॉल खा लो, जितना मर्जी आप लिपिड्स ले लो, क्योंकि ये सारे डाइटरी इनटेक से लिपिड आपकी बॉडी में कैसे एंटर हो रहा है, डेफिनेटली थ्रू डाइट से एंटर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी खाते रहो तो HDL फीमेल्स में ज़्यादा है या एथलीट्स में ज़्यादा है तो कोई नुकसान नहीं होगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन नेचुरली एक सेफ्टी का सिस्टम जो है वो नेचुरली फीमेल की बॉडी में HDL के लेवल ज़्यादा हैं, एथलीट्स में इसके लेवल ज़्यादा हैं, तो दोनों को जी चांस कम है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट नोटिस में तो HDL की इंपॉर्टेंस ही लिखी हुई है, इसके नीचे लिखा हुआ है देखो लिपोपॉलीसेकेराइड्स। लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो हैं अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लिपोपॉलीसेकेराइड बेसिकली तो कंपाउंड लिपिड्स की टाइप है, लेकिन इन्होंने लिपोप्रोटीन्स के नीचे लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन बट आई मस्ट से कि कंपाउंड लिपिड्स की ही एक टाइप है बेसिकली, इट हैज़ नथिंग टू डू विद आई थिंक लिपोप्रोटीन्स। बेसिकली लिपोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि एक लिपिड का पार्ट है, साथ में एक दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। अगर तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से याद हैं तो पॉलीसेकेराइड्स को रिमेंबर करो, पॉलीसेकेराइड्स है थर्ड क्लास ऑफ द बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो लिपिड के साथ मिलकर बनाते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड्स। और इनका फंक्शन ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। जो लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड इज द बेसिकली टाइप ऑफ द दिस इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड लिपिड्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। इसके बाद है जी बेसिकली स्टेरॉइड्स एंड स्टीरोल्स, जो मैंने तुम लोगों से भी जिक्र किया है कि समटाइम्स हम इसको डिराइव्ड लिपिड्स में भी लिख सकते हैं, जो स्टेरॉइड्स और स्टीरोल्स हैं दे कैन ऑल्सो बी रिटन इन द डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। बट देयर इज अ सेपरेट हेडिंग ऑफ स्टेरॉइड्स एंड स्टीरोल। जो बॉडी का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टीरोल है ना दैट इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो स्टीरोल्स जो हैं वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स का जो इंपॉर्टेंट स्टीरोल है दैट इज एर्गोस्टीरोल, और ह्यूमन बॉडी का जो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो बेसिकली स्टीरोल है दैट इज
कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को सुनते ही जैसे ही आपकी माइंड में कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लाइक हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। इसके साथ साथ आई मस्ट टेल यू कि कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो आई मस्ट से कि बिल्कुल हमें डाइट से इसको डिलीट नहीं करना। इफ़ वी completely delete the lipids और completely delete the cholesterol from our diet, अगर कोलेस्ट्रॉल और साथ में जो लिपिड्स हैं बिल्कुल अगर हम इनको लेना बंद कर दें तो पर्सन वुड डाई रादर। इतनी ज़्यादा लिपिड्स की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमने सिर्फ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखने, वो तो सिर्फ ये है कि जब आप एक्सेस में लोगे तो इट कैन कॉज द प्रॉब्लम, ठीक है। अदरवाइज लिपिड्स के जो बेनिफिट्स हैं बॉडी की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, दे आर एनॉर्मस। अच्छा जी, अब टॉकिंग अबाउट द कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल और दैट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बेसिकली मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी। बहुत से हमारी बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से हम ये कहते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका पेरेंट मॉलिक्यूल है, उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल जितने हमारे ये सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, इन सब का जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसके अलावा आपके जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल सुना होगा तुम लोगों ने, एल्डोस्टेरॉन सुना होगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्टिसोल के जो कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं ये भी बेसिकली किससे बने हैं, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बने हैं। इसके अलावा विटामिन डी की सिंथेसिस में भी कोलेस्ट्रॉल इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि विटामिन डी भी हमारी स्किन पे जब यूवी रेज बनती हैं तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली वो इसको विटामिन डी में चेंज कर देता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का विटामिन डी की सिंथेसिस के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो फंक्शंस जो हैं कोलेस्ट्रॉल के, दर बड़ी इंपॉर्टेंट और समटाइम्स क्वेश्चन आ भी जाता है, बल्कि आया भी बहुत दफ़ा हुआ है क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा जी, इज इम्पॉर्टेंट एनिमल स्टीरोल है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में मैंने बताया है कि एर्गोस्टिरोल होता है, ठीक है। और ये मैंने बता भी दिया कि हार्मोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स हैं सेल वॉल का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा जी लिवर भी जो है वो हमारी बॉडी में जो है ना कोलेस्ट्रॉल बेसिकली सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं दैट इज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इससे अगर डेफिनेटली ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेस देन 200 मिलीग्राम है, लेकिन अप टू 170 तक भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि अप टू 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इट हैज बीन कंसिडर्ड सेफ। तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमें जो ब्रॉडर लिमिट है, वैसे भी जो डेड एंड लिमिट है उससे थोड़ा कम ही जो है ना इसके लेवल्स हों तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये फंक्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल के, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले तो जी दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है और तो हम सबको पता है कि हर सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर वो रप्चर हो जाती है तो इसका मतलब है सेल को तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है ना, डैमेज हो सकता है। जैसे हमारे घर की बाउंड्री है, ठीक है, इफ इट कैन डैमेज तो उसका मतलब ये है कि एनीवन कैन कम इनसाइड द योर होम। इसी तरह से जो बॉडी में जो सेल उनमें भी क्या है कि एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है उनके अराउंड विच इज द सेल मेम्ब्रेन। अगर वो ना हो तो एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट कैन come into the cell and cause definite infection or problems. It is not flexible, hence contributes to the rigidity of the cell membrane. Flexible नहीं होता कोलेस्ट्रॉल, इस वजह से हम आपकी सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी टफ होती है, रिजिड होती है, जो कि होनी भी चाहिए। इसके अलावा जी बाइल एसिड का प्रिकर्सर है बेसिकली, ठीक है। विटामिन D3, कोल कैल्सीफेरोल का भी ये प्रिकर्सर है। स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, जो भी मैंने बात बताया भी है तुम लोगों को। इसके अलावा 7-dehydrocholesterol which is the precursor of the which is the present in skin is converted into vitamin D when skin is exposed to sunlight। जब स्किन पे जब सनलाइट पड़ती है, यही वजह जो कहते हैं कि जी आप धूप में बैठे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। और आजकल विद reference to it has also been observed that the people who has high intake of the vitamin D या vitamin D level जिनका satisfied है उनमें कोरोना होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, ठीक है। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर आप आधा घंटा धूप में नहीं गुजार सकते तो ट्राई टू गेट इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन आवर डाइट, ठीक है। ये लाजमी तुम लोगों को आजकल तो लाजमी ही लेना है। इसके अलावा भी लेना विटामिन डी के ज़ाहिर डेफिनेट बहुत फ़ायदे हैं।
इसके अलावा जी इट प्रिवेंट्स द वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन, पानी से जो है वाटर इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है, स्किन से जो बेसिकली ठीक है वाटर इवेपोरेशन को प्रिवेंट कर रहा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, लिपोप्रोटीन्स का भी कंपोनेंट है। इसके अलावा जी जो एर्गोस्टेरॉल है दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि प्लांट्स का बेसिकली जो स्टेरॉल है दैट इज एर्गोस्टेरॉल, वो भी प्लांट्स में भी विटामिन D2 बना रहा होता है। बाइल, बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स। बाइल क्या है? बाइल तुम सबको पता है कि दैट इज बेसिकली पिगमेंट, ठीक है, और जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रीट हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो बाइल कंसिस्ट of basically it is a mixture of basically uh, some salts and some compounds. Just want to make it clear. Bile is basically composed of bile acids, mucus, lipid, bile pigments, inorganic salts, ठीक है, बिल्कुल मिक्सचर है इन सब चीज़ों का, ठीक है, बाइल। और जो मेजर कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है, और बाइल का बेसिकली फंक्शन क्या है? बेसिकली इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स, बेसिकली दैट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, कि लिपिड्स की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट है बाइल, ठीक है। दैट इज द वाटरी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बेसिकली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और लिपिड्स की डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके मेन कंपोनेंट्स में है बाइल एसिड है, म्यूकस है, लिपिड्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, और इसमें है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो बाइल एसिड इज bile basically combines with a salt like sodium and potassium and it form the bile salts. इसके अलावा जो हैं जी इसमें लिपिड्स कौन कौन से हैं? प्लाज्मालोजिन जो हमें लास्ट टाइम पढ़े थे, फॉस्फोलिपिड्स हैं, लेसिथिन है, ठीक है, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द बाइल। इसके अलावा जी इसमें पिगमेंट होता है, जैसे तुम लोग सुना होगा बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं बाइल के साथ। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, पोटेशियम, सोडियम आर आल्सो प्रेजेंट। The most important component of basically bile is bile salts and also the phospholipid which is lecithin, ठीक है। लेसिथिन की तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस पहले भी पढ़ी है कि लंग सर्फेक्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा फॉस्फोलिपिड है, और अक्सर जो है ना इस पे एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेसिथिन। इसके अलावा जी बाइल इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, इसका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा जी इट इज बिटर टेस्ट और एरोमेटिक इसका ऑर्डर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर है, बिटर टेस्ट, एरोमेटिक ऑर्डर है। बाइल पे भी समटाइम्स नोट आ सकता है। आफ्टर सम टाइम वी विल मूव टुवर्ड्स द ब्रेक, आई थिंक एट वी हैव द 2 classes, so after 1 hour around about 5:50 we can have the namaz break because I also have to pray the prayer basically, that's why. सो मूविंग टुवर्ड्स द बाइल, ठीक है जी, तो बाइल एक ग्रीनिश कलर का पिगमेंट है जिसका बिटर टेस्ट है, एरोमेटिक ऑर्डर है, जिसमें म्यूकस है, जिसमें बाइल एसिड्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और काम इसका ये है लिपिड डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर बाइल नहीं होगा तो डेफिनेटली लिपिड डाइजेस्ट नहीं होंगे और आप जो डाइटरी हमारे लिपिड्स हैं वो ज़्यादा फिर कंज्यूम भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि जिन लोगों में बेसिकली गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई होती है, ठीक है, और उसको रिमूव कर दिया जाता है बेसिकली गॉल ब्लैडर को, तो उनमें फिर क्या होता है कि वो ज़्यादा फैटी फूड आइटम्स को फिर कंज्यूम करते बेसिकली, ठीक है। बाइल एसिड्स आर कॉलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। अब ये नाम तुम लोगों ने याद रखने हैं कि वी हैव द 2 बाइल एसिड्स, ठीक है, कि बाइल जो है वो एक तो सिंपल बाइल की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस जो है इसके साथ मिलके 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, ठीक है, बाइल एसिड्स, एक कॉलिक एसिड और एक कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड्स। दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड द लिवर, ठीक है। जो हमारे लिवर बताया कि लिवर भी कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बल्कि इतनी अमाउंट में लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है कि अगर तुम लोग डाइट में नहीं भी लोगे ना तो बॉडी की जो कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को डाइट में लेने की इसी वजह से आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में लिवर भी बना रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिवर कोलेस्ट्रॉल भी बना रहा है, लिवर बाइल एसिड्स को भी बना रहा है, कॉलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। The bile acids are basically activated by ATP
coenzyme A and conjugated with glycine or other amino acids like taurine. ये जो बाइल एसिड्स हैं हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड्स जो तुमने प्रोटीन्स में पढ़े थे उसके साथ भी बेसिकली कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ भी बेसिकली अमाइड लिंकेज बनाते हैं, ठीक है. बाइल एसिड्स ऑल्सो कंबाइन विद द अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ग्लाइसिन के साथ भी लिंकेज बनाता है ये, ठीक है, और टॉरिन के साथ भी लिंकेज बनाता है ये, ठीक है. तो बाइल एसिड्स जो है हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स के साथ बेसिकली लिंकेज बना रहे हैं, ठीक है. तो जब ये अमाइनो एसिड्स के साथ लिंकेज बनाएगा तो देखो कॉलिक एसिड है तो वो ग्लाइकोलिक एसिड बन जाए, ठीक है, और चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड था वो ग्लाइको चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड बन गया क्योंकि उसने ग्लाइसिन के साथ बेसिकली लिंकेज बना दी. अब ये जो अमाइनो एसिड्स के साथ लिंकेज बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसका भी डेफिनेटली जो कुछ ना कुछ डेफिनेटली रोल होगा बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से हम लिंकेज बना रहे हैं बाइल एसिड्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स भी हैं बॉडी में बेसिकली. तो आपने जो है ना जी, एक तो हमने बाइल के कंपोनेंट जो है वो लाजमी याद रखना है, ठीक है, और इसके अलावा जो है बाइल एसिड्स भी हमने जो है जितना इसमें लिखा हुआ दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है, कि वो भी तुम लोगों ने जो याद करना है क्योंकि शॉर्ट नोट कैन बी लाइक गिवन इन द एग्जाम, ठीक है. तो ये जो हमारे बेसिकली अब ये जो हमारे बाइल एसिड्स हैं फैट्स की मल्सिफिकेशन, ठीक है, कर रहे हैं. इसके अलावा जी बेसिकली फैट्स की मैं तुम लोगों को बताया था जैसे डाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है. तो अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके भी इनका रोल जो है वो आपके डाइटरी लिपिड्स की डाइजेशन से ही रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है. तो बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स तीनों बेसिकली फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं. अब ग्लाइसिन के साथ जब बाइल एसिड मिलेगा तो क्या बना रहा है, ग्लाइकोकॉलिक एसिड और ग्लाइकोचिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड. दो बाइल एसिड्स हैं जिनके नाम तुम लोगों ने याद रखने हैं, कॉलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड. इसी तरह अमाइनो एसिड टोरिन के साथ जब ये मिलेगा, ठीक है, तो इसका नाम भी उसी तरह से बेसिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, टोरो चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड टोरोकॉलिक एसिड. देखो नेमिंग उसी तरह से चेंज हो जाएगी जैसे जैसे हम इनको अटैच करेंगे अमाइनो एसिड्स को. बाइल एसिड्स के बाद वी हैव द नेक्स्ट बाइल सॉल्ट्स. Bile salts, they basically the bile acids, they also combine with I think salts, sodium and potassium basically, and they form the bile salt. अब बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो, अब ये जो बाइल एसिड्स हैं जब ये बाइल सॉल्ट्स के साथ सोडियम पोटेशियम के साथ जब अटैच करेंगे तो जाहिर है फिर इनकी नेमिंग भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, इनकी नेमिंग भी डेफिनेटली फिर चेंज हो जाएगी. सो दीज एसिड्स लाइक ग्लाइकोलिक लाइक कौन से एसिड्स हमारे पास, कॉलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है. तो ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स के साथ जो मेजर हमारे सॉल्ट कौन कौन से हैं, एक सोडियम है और एक पोटेशियम, ठीक है. बॉडी में भी तुम देखो कि हमारे जो आयन चैनल्स में, हमारे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स में जो सॉल्ट्स हैं वो सोडियम पोटेशियम ही हैं. तुम सब लोगों को ब्रेक की क्या जल्दी पड़ गई है, ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेक, ठीक है. तो जी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बेसिकली जो है वो बाइल सॉल्ट इज लेफ्ट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज ऑल्सो लेफ्ट ना. तो जल्दी से तुम लोग भी पढ़ लो नमाज और मैं भी पढ़ लूँ और इसके बाद जो है ना बेसिकली जस्ट कमिंग बैक एंड कंप्लीटिंग आवर लिपिड्स टॉपिक, ठीक है जी. तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नमाज ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल continue our lecture again after a short namaz break. 10 minutes, I think 10 to 15 minutes is enough. So all have to come back immediately. Okay.
Hello, students, we're back. Are you back? So that we may continue. We are back after a basically prayer. I hope you will be able to listen me. We're back and we are about to do the bile salts. You have done with the bile acids, and now bile salts, which was left basically. I hope you're able to listen me. I think not all the students are back. Students, if are you back? Then we may continue towards our lecture. We may proceed towards our lecture. So we were on the bile salts. We did the bile acids. There are two bile acids. One is the cholic acid and another is the chenodeoxycholic acid. ठीक है, दो बाइल एसिड है, एक कॉलिक एसिड और एक चीनोडिऑक्सी कॉलिक एसिड. और ये जो बाइल एसिड्स हैं बेसिकली ये बाइल सॉल्ट्स के साथ भी बेसिकली बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते हैं. ठीक है, और ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, और जो बाइल एसिड्स हैं अमाइनो एसिड्स के साथ भी मिल रहे हैं. ठीक है, और फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. बेसिकली एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? फैट्स की एमल्सिफिकेशन का मतलब ये है द मिक्सिंग ऑफ फैट्स विद वाटर, कि आप जब पानी और फैट को मिक्स करते हो तो फैट्स के बेसिकली जो लार्ज पार्टिकल्स हैं बेसिकली दे आर कंपोज्ड इन, दे आर बेसिकली हाइड्रोलाइज्ड इनटू द टाइनी ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं या जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो टाइनी ड्रॉपलेट्स में. जब फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है लाइपेज एंजाइम को कि वो फैट्स पे एक्ट कर सके. ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो मेजर एंजाइम है विच एक्ट ऑन फैट्स और लिपिड्स इज लाइपेज. ठीक है, तो करेगा जब उसको एक सरफेस एरिया मिलेगा. ठीक है, तो टाइनी जब वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे फैट के मॉलिक्यूल्स, तो फिर लाइपेज उस पर ईजिली एक्ट कर सकेगा, उसको डाइजेस्ट कर सकेगा, उसको ब्रेक कर सकेगा. तो फैट्स जब तक ब्रेक नहीं होंगी तो आपके वो फायदा ही क्या खाने का? अगर वो बॉडी में जाके ब्रेक नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली दैट इज यूजलेस. ठीक है, तो हमने फैट्स को लिपिड्स को बॉडी में जाहिर है ब्रेक करवाना है. एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए बाइल्स बहुत ज़रूरी है, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स. ठीक है, ऑल द बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ बाइल एंड इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे बाइल सॉल्ट बाइल का डेरिवेटिव हो गया ना, सॉल्ट के साथ मिल गया. फिर बाइल एसिड भी इसका डेरिवेटिव एक कंपाउंड है, एसिड के साथ मिल रहा है, बॉन्ड बना रहा है. तो बाइल और बाइल के जो बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, ये सब बेसिकली फैट्स की एमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में बेसिकली फैट्स जो है वो क्या हो सके,
डाइजेस्ट हो सके बेसिकली, ठीक है, कि हमारी जो ड्यूडेनम है बेसिकली वहाँ पे बेसिकली ये प्रोसेस होता है फैट इमल्सिफिकेशन का, ठीक है, स्टमक में, ड्यूडेनम में। अब जी दो एसिड हमने पढ़े, कॉलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, जो कि अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट विद द रिस्पेक्ट टू द एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, कि कौन से अमाइनो एसिड के साथ बाइल एसिड्स जो हैं जी वो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है ना इसको वी हैव टू रिमेंबर कि ग्लाइसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, टॉरिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसके अलावा जो बाइल एसिड्स हैं वो कौन कौन से सॉल्ट्स के साथ बेसिकली लिंकेज बना रहे हैं। तो वी हैव द टू सॉल्ट्स, ठीक है, द वन इज सोडियम सॉल्ट, अनदर इज पोटेशियम सॉल्ट। तो सोडियम के साथ भी लिंक बना रहा है और पोटेशियम के साथ भी बेसिकली लिंकेज बना रहा है। और यही हमारी बॉडी के मेजर देखो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम पोटेशियम। अब सोडियम के साथ बनाएगा तो फिर क्या बनेगा, सोडियम ग्लाइकोलिक एसिड, और पोटेशियम के साथ जब मिल रहा है दूसरा वाला चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड तो वो भी हो जाएगा सोडियम ग्लाइको चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है। तो नेमिंग उसकी इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से जब पोटेशियम के साथ मिलेगा तो नेमिंग इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड हमारे जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बिकॉज कॉन्जुगेटेड मतलब डेफिनेटली इसके साथ एक और चीज़ कॉन्जुगेट कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं किसी, ठीक है, चीज़ के साथ। अब ये सॉल्ट्स के साथ जब अटैच कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड हैं, तो इनको हम कह रहे हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर मेकिंग द बॉन्ड विद द सॉल्ट्स। ऑलरेडी जो है ये अमाइनो एसिड के साथ भी बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। और ये जब बाइल एसिड्स जो हैं बाइल सॉल्ट्स के साथ मिल रहे हैं तो इनको हम प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स कह रहे हैं, ठीक है, कि इनके साथ सोडियम पोटेशियम भी अटैच हो रहा है। और ये हर वक्त अटैच नहीं रहेगा, ज़ाहिर है बॉडी में जाके जैसे ही फैट्स एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, डाइजेस्ट होंगे, तो ये सॉल्ट इसके साथ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देयर आर सम अदर एंजाइम्स इन आवर बॉडी जो कि इन सॉल्ट्स को फिर रिमूव कर देंगे। हर वक्त बाइल सॉल्ट्स के बाइल एसिड के साथ ही बाइल सॉल्ट्स नहीं अटैच रहते, ये सिर्फ फैट्स की इमल्सिफिकेशन तक है, क्योंकि हर वक्त तुम लोग फैट्स नहीं ना खा रहे, तभी अटैच हो रहे हैं कि फैट्स की जो है एमल्सिफिकेशन करवाई जाए। These conjugated form of the bile salts are called as the primary bile salts and they are the best detergents के तौर पे भी ये काम करते हैं, ठीक है। They act as the best detergents and the best emulsifying agents, ठीक है। As a detergent भी primary bile salts का act कर रहे हैं और as a emulsifying agents भी ये act कर रहे हैं। इसके अलावा they are made in the liver and secreted in bile secreted as bile through the gall bladder, ठीक है। लिवर में बेसिकली बनते हैं और फिर बेसिकली दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड इनटू द गॉल ब्लैडर, बेसिकली जहाँ से फिर ये सक्रीट होते हैं बेसिकली, ठीक है। और सक्रीट होने के बाद बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली दे हेल्प इन द लिपिड डाइजेशन। इसके अलावा इंटेस्टाइन में जो है जी बाइल में भी डी कॉन्जुगेटेड, ठीक है। देखो क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये जो कॉन्जुगेट, ये जो सॉल्ट के साथ लिंकेज बना रहे हैं बाइल एसिड्स, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके बेसिकली ये जो सॉल्ट्स हैं इससे रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो सोडियम पोटेशियम है दे हैड बीन रिमूव्ड आउट। कॉलिक एसिड और ये चीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड फिर बन जाएंगे, और प्लस अमाइनो एसिड्स भी जो इसके साथ अटैच थे दे हैव आल्सो बीन रिमूव्ड इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड्स भी डीकॉन्जुगेट हो जाते हैं, सॉल्ट्स भी बेसिकली जो है वो डीकॉन्जुगेट हो जाते हैं, और फिर हम ऐसे जो है सॉल्ट्स को फिर हम कहेंगे सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स के, जिसके साथ से एसिड्स जो हैं वो अब रिमूव हो गए हैं, डी कॉन्जुगेट हो गए हैं, ठीक है। जब अटैच होते हैं तो प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स, जब डी कॉन्जुगेट होते हैं तो फिर सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। Bile salts are reabsorbed in the ileum and they are returned to the liver where they are secreted into the bile again, ठीक है। दोबारा जो है बाइल सॉल्ट्स जो हैं फिर इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है इलियम में, ठीक है, तो मैक्सिमम ये रीअब्जॉर्ब हो जाए और दोबारा फिर दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिवर, ताकि दोबारा से लिवर से ही बेसिकली बाइल की सिंथेसिस होनी है कि दोबारा ये इन द फॉर्म ऑफ द बाइल जो है दोबारा इनकी सिंथेसिस हो सके, और ये बेसिकली स्टोर होते हैं कहाँ पे, गॉल ब्लैडर पे, ठीक है। और गॉल ब्लैडर में जब आपको हमें जरूरत होती है बॉडी को लिपिड्स डाइजेशन के लिए, तो बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड दिस इज द ग्रीनिश लिक्विड विच कंप्राइज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। एक वाटरी मिक्सचर है ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसका बिटर टेस्ट है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जिसमें, और प्लस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं दोनों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो है ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, सोडियम और जो पोटेशियम है दीज आर द इनऑर्गेनिक बेसिकली, ठीक है। तो जो अमाइनो एसिड अटैच है बाइल के साथ वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है बाइल में और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है। जो अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है क्योंकि वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना अमाइनो एसिड, तो वो बाइल का ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है,
और ये जो सॉल्ट्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये बाइल के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। कभी एमसीक्यू में या कभी क्वेश्चन आ सकता है कि what are the basically organic components of bile and what are the inorganic components of the bile। तो जिस भी चीज में आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ रहा है, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनिक। और अदर देन और एक्सेप्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, दे आर इनऑर्गेनिक। तो बाइल के हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, दैट आर द सॉल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वो कौन से हैं कि साथ में जो आपके इसके बाइल के साथ जो बेसिकली अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं, ग्लाइसिन मिल रहा है, टोरीन मिल रहा है, तो वो दोनों बेसिकली क्या हैं जी, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। क्लिनिकल नोट दिया हुआ है बाइल सॉल्ट्स के नीचे, विच इज कॉल्ड एज द गॉल स्टोन्स या कोलिथियासिस हम जिसको कहते हैं, ठीक है। यू ऑल आर फेमिलियर विद द गोल स्टोन्स, क्योंकि क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कोलिथियासिस कि आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल के बेसिकली गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स बन जाएं, ठीक है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बन जाते हैं उनको हम कह रहे हैं बेसिकली गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो जी अब ये जो गॉल स्टोन्स हैं, दे कैन नॉट बी बेसिकली हाइड्रोलाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। जैसे आपके किडनी स्टोन्स होते हैं, समटाइम्स होता है कि देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच कैन हाइड्रोलाइज, व्हिच कैन ब्रेक बेसिकली किडनी स्टोन्स, ठीक है। बट आई थिंक अप टिल नाउ आपकी बहुत एडवांस कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की वहीं पे ही जो है वो ब्रेकडाउन हो जाए और रिमूवल हो जाए बेसिकली। सो इसके लिए जो है वो बेसिकली गॉल ब्लैडर सर्जरी ही हमें करनी पड़ती है, ठीक है, और गॉल ब्लैडर को ही हमें रिमूव करना पड़ता है, आइदर वेज, ठीक है। लेटेस्ट अप्रोच तुम लोग ले लो या जो हमारी सर्जरी की मेजर सर्जरी की अप्रोच है वो ले लें, तो बेसिकली गॉल स्टोन्स जो they cannot be removed out with the help of the simple, ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें जो है जी, अगर फॉस्फोलिपिड्स बहुत ज्यादा अगर हम डाइट में, ठीक है, इसके अलावा प्लस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेसिकली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गॉल स्टोन। तो गोल स्टोन्स की बेसिकली जो गॉल ब्लैडर स्टोन पोटेटो, ठीक है, बहुत ज्यादा गोल ब्लैडर जमा और इकट्ठा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द स्टोन्स बना देगा वो, तो उसको गोल और गोल स्टोन्स। अब जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इज द डिराइव्ड लिपिड बेसिकली, ठीक है। तो हमने बात की थी, ये वैसे कोलिथियासिस वाला दैट इज नॉट मच विजिबल टू मी राइट नाउ, बट ये है कि जो भी इसकी एटियोलॉजी है, यानी कि जो कॉज है, मेजर कॉज, तो यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, क्लिनिकल नोट्स जो है वो हमने स्किप नहीं करने हैं कि भी इसकी जो एक रीजन है बेसिकली कि आई थिंक अगर ज्यादा जो है वो बेसिकली एंटर में सब्स्टिट्यूटेड बाय द बाइल एसिड्स, ठीक है, या बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, तो उसकी वजह भी ज्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसकी that such type of questions can appear in exams basically। so examination point of view से हमने जो हमारे जो ये boxes clinical notes के हैं, we will not skip that basically। अब जी आपके जो है लास्ट बेसिकली हमारा जो टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू लिपिड्स, दैट इज बेसिकली द डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो डिराइव्ड लिपिड्स अगर कभी समटाइम्स आ जाए प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर, तुम लोग लिख भी सकते हो बेसिकली, बिकॉज दे आर द डिराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के बेसिकली डिराइव्ड लिपिड्स हैं। एक तो सबसे पहले है प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा हमारे पास है थ्रोम्बोक्सिन्स, और तीसरा है हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, ये जो 3 हैं बेसिकली ये हमारे इंपॉर्टेंट बेसिकली डिराइव्ड लिपिड्स हैं। आप तुम लोगों की बुक में तो बेसिकली जो है ना वो फैटी एसिड्स को भी और ग्लिसरॉल को भी और शायद कोलेस्ट्रॉल को भी डिराइव्ड लिपिड लिखा हुआ, बट जो मेजर हमारे बेसिकली जो डिराइव्ड लिपिड्स है ना, यस यू कैन इंक्लूड दैट आल्सो इन द डिराइव्ड लिपिड्स, बिकॉज वो भी लिपिड से ही बन रहे हैं ना, नेटिव लिपिड से ही बन रहे हैं। लेकिन जो मेजर हमारे जो डिराइव्ड लिपिड्स है ना, आई मस्ट से कि 3 हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक थ्रोम्बोक्सिन्स और तीसरा ल्यूकोट्राइन्स। तीनों के नाम अभी ये
हम तीनों ही बेसिकली तीनों की तरफ ही हम बेसिकली मूव कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रोस्टाग्लैंडिन. अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम इनको क्यों कहते हैं बेसिकली, बिकॉज दे हैव बीन सिक्रेटेड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनकी सिक्रीशंस होती हैं. ठीक है, इन सब्सटेंसेस की, इन लिपिड लाइक कंपाउंड्स की. दैट्स व्हाई द नेम इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड इन बोथ द सेक्सेस. मेल फीमेल दोनों में माइन्यूट अमाउंट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली बनते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में फंक्शंस हैं. ठीक है, बनते हैं तो जाहिर है दे आर नॉट यूजलेस. बेसिकली दे परफॉर्म enormous amount of the functions in our body, and there are not one type of the prostaglandin which is present in our body. There are several types of prostaglandins, in fact several types of prostaglandins which have been produced, synthesized in our body. ठीक है, जो बन भी रहे हैं और सिक्रीशन भी हमारी बॉडी में इसकी हो रही है. और प्लस जाहिर है बनने के लिए जो पेरेंट मॉलिक्यूल है लिपिड्स, वो डाइटरी इंटेक से ही है. ठीक है, एक तो कोलेस्ट्रॉल भी, एक तो लिवर आपकी बॉडी में लिवर है कुछ फॉर्म्स लिपिड्स की, फैट्स की, और दूसरा आपका मेजर सोर्स है कि बॉडी में लिपिड्स कहाँ से आ रहे हैं. दे आर द बेसिकली डाइटरी सोर्सेस, खाने पीने से जो आप लिपिड फैटी हम जो ले रहे हैं, ठीक है, डाइट में, उससे आ. प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिस जो है जी बेसिकली इसको आपने, क्योंकि मैंने बताया कि इतना नहीं है. ठीक है, दीज आर द हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस. ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस एंड देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है, तो इसको उन्होंने जो है ना पीजी के साथ लिखा हुआ है, और प्लस जो है ना पीजी की डिफरेंट पीजी है. सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ द बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्लस इनका जो बन बेसिकली एकोसानाइड्स आर द कंपाउंड्स बेसिकली जो इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, एकोसानाइड्स, बिकॉज दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इज कॉल्ड एज एराकिडोनिक एसिड. ठीक है, फैटी एसिड्स का जो जिस पेज पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं, उसमें आप देखोगे कि एंड पे जो है ना 24 कार्बन फैटी एसिड लिखा हुआ है विच इज कॉल्ड एज एराकिडोनिक एसिड, एंड दिस इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो एराकिडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में हम अगर मॉडिफिकेशन करें तो वी विल गेट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसको हम एकोसानाइड्स कंपाउंड्स भी कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को. ठीक है, और प्लस इसकी जो सिंथेसिस हो रही है बेसिकली वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड विच इज अ 24 कार्बन, जिसमें 24 कार्बन की एक चेन होती है. ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड्स में अगर याद हो तो देयर इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ना, कुछ में 16 कार्बन है जैसे पामेटिक एसिड, कुछ में 18 है स्टीरिक एसिड. ठीक है, तो इनकी नेमिंग आई डोंट नो तुम लोगों ने अभी तक वो टेबल किया है कि नहीं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट. जब हमने नाम याद रखने हैं तो आगे उसका मेंशन होगा 16 कार्बन कंपाउंड, 18 कार्बन कंपाउंड, 20 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो जो 24 कार्बन कंपाउंड फैटी एसिड है अनसैचुरेटेड, यानी कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है. तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड बेसिकली वो बना रहा है बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और बाकी भी जो डेरिवेटिव्स हैं लाइक थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स जिनकी मैंने बात की है. ठीक है जी, तो इट हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड. जो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड, वो इसका प्रिकर्सर है या इसका पेरेंट मॉलिक्यूल है, ये हम इजीली हम कह सकते हैं. अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में जो है ना न्यूमरस फंक्शंस जो बेसिकली परफॉर्म कर रही है, और प्लस स्ट्रक्चर वेरिएशन की बेस पे, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, और प्लस जाहिर है भी इसकी ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स की डिफरेंट टाइप्स है. ठीक है जी, तो इसके फंक्शंस भी इनके डिफरेंट हैं. अब कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे कि यूटरस की कंट्रैक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, कुछ आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करवा रहे हैं. ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, जो है वो डायलेशन करना, इनके डिफरेंट वजह से जो पे आगे नाम वगैरह भी शायद लिखे होंगे, पीजी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, एफ और पीजी F2. ठीक है, इसी तरह से जो है ना थ्रोम्बोक्सिन्स को TX से लिखा हुआ है. अगर तुम लोग के पास बुक्स हैं तो यू कैन सिंपली सी. अच्छा जी, लेकिन ये हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हार्मोन्स नहीं है. ठीक है, दे डिफर फ्रॉम द हार्मोन्स बेसिकली. ठीक है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ना वो उनका जो टारगेट ऑर्गन होता है दैट इज क्वाइट अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ रिलीज. ठीक है, और स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स में ही वो बेसिकली हार्मोन्स कैन बी डक्टलेस. ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स में भी वो रिलीज हो रहे होते हैं बेसिकली.
इसके अलावा जी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली जो हैं इनके फंक्शंस पे अगर हम बेसिकली आ जाएं, ये एक तो स्टेरोल नहीं है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्टेरोल था वो कोलेस्ट्रॉल तक था, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ स्टेरोल बट इट इज़ अ बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द लिपिड, इट इज़ अ बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ अ लिपिड। अब इसके फंक्शंस क्या हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बेसिकली? So the functions of the prostaglandins basically they have the role in basically in controlling the inflammation. इसके अलावा जी they have the role in basically causing the vasoconstriction and vasodilation. They can increase the blood pressure, they can decrease the blood pressure, they can induce the blood clotting. ये तो वैसे thromboxanes का रोल है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा they relieve the basically asthma. yes prostaglandins है इसकी जो समझ लो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी तो बात ये है कि बेसिकली यूट्रस की कंट्रैक्शन करवाते हैं, विग्रस कंट्रैक्शन, और दैट इज़ वाई जो है ना बेसिकली इसको एज अ थेराप्यूटिक जो है अबॉर्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है, फॉर द थेराप्यूटिक अबॉर्शन या डेड फीटस या स्टिल बर्थ है तो उस केस में भी प्रोस्टाग्लैंडिन द फॉर्म ऑफ कैन बी यूज। इसके अलावा जो है ना ये इट हैज़ द प्रेशर ओपन द ब्लॉक्ड नेजल पैसेजेस, जो ब्लॉक्ड नेजल पैसेजेस होते हैं, ब्लॉक्ड नेजल पाथवेज होते हैं, तो उसको ओपनिंग के लिए और प्लस आपके जो ब्रोंकाइटिस है या क्योल्स की अगर ओपनिंग के लिए भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर वाइडली यूज्ड इन सर्टेन मेडिकेशंस, तो इन द फॉर्म ऑफ एरोजोल स्प्रेज बेसिकली, ठीक है, एरोजोल की फॉर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन वाइडली यूज्ड टू ब्लॉक नेजल पैकेजेस, ठीक है, तो के लिए यूज हो रहा है द फॉर्म ऑफ एरोजोल स्प्रेज और क्योंकि उसी से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है, लंग से, तो एस्थमा के जो हमारे इनहेलर्स होते हैं उसका भी एक मेजर कंपोनेंट अब प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, एस्थमा के स्प्रेज के लिए, ठीक है, नेजल स्प्रेज के, एस्थमा के इनहेलर्स के लिए हमारा जो मेजर है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अलावा हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन, दोनों को कैसे कर रहा है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। एक टाइप अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है तो दूसरी करने में हेल्प करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनिशियली प्रोस्टाग्लैंडिन्स दो ये काम करते हो। यस बिल्कुल जी, अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल फीमेल और मेल दोनों सेक्सेस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक माइन्यूट अमाउंट में डेली सिक्रेट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों मेल फीमेल दोनों सेक्सेस में थोड़ी अमाउंट में जो है ना 1 मिलीग्राम पर डे, बड़ी माइन्यूट अमाउंट में, ठीक है, डेली फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बस होते हैं, ठीक है, और जब आपको इसके एक्सेसिव है कि यूट्रस के लिए तो फिर फॉर्म में ये मेडिसिनल फॉर्म में बेसिकली यूज होंगे, जैसे एरोजोल स्प्रेस की फॉर्म में, जैसे एस्थमा इनहेलर्स की फॉर्म में, ठीक है, तो इनकी मेडिकेटेड लिहाज से है ना, मेडिकेशन के लिहाज से भी थेराप्यूटिक इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। और मेडिकेशन टाइप्स हैं, एक टाइप अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो एक टाइप करने में हेल्प करेगी, दूसरी टाइप नेचुरली जो है अगर बॉडी होंगे, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको कि आप बहुत ज्यादा हाइपोटेंसिव स्टेट में ना चले जाओ, उसको नेचुरली इंक्रीज करेगी, बट क्योंकि इन अमाउंट होती है बॉडी में बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर द मेडिकेशन, फिर हमें सर्टेन मेडिकेशंस की जरूरत होती है ना, अगर ये खुद ही सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो हम फिर बीपी की मेडिकेशन क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दे आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी इन वेरी माइन्यूट अमाउंट्स, ठीक है, सिर्फ माइन्यूट अमाउंट के लिए माइन्यूट अमाउंट में ही बेसिकली ये बॉडी में जो है ना वो रिलीज हो रहे हैं बेसिकली। तो और दूसरा ये है कि बॉडी में जो है ना ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट्स में स्टोर भी नहीं होते बॉडी में, ठीक है, स्टोर भी नहीं हो रहे बॉडी में, तो दैट्स वाई आपको फिर ये है कि अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो फिर आपको थेरापेटिक फॉर्म में ही आपको लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि बॉडी में इनकी स्टोरेज भी कोई नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा जी ये क्या कर रहे हैं, अस्थमा को रिलीव कर रहे हैं, इसके अलावा जो है दे ऑल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ द फैटी एसिड्स, रिलीज को भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये हमारी जो इंटेस्टाइनल मेरे ख्याल में जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस वगैरह उसको भी कंट्रोल कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन के इनडेराइव्ड लिपिड्स के बेसिकली वास्ट नंबर ऑफ फंक्शंस। तो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस एक पाथवे है आपके फूड ओसोफेगस सिस्टम में आना, ठीक है, तो उसको भी जो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है ये
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अब ये एक दिया हुआ है जिसमें इसके जो है ना जी वो फंक्शंस हैव बीन गिवन, इफ इट इज क्लियर टू यू। तो इसमें देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तो हेडिंग देके बताया हुआ है, लेकिन जो बाकी दो मैं तुम लोग को डिराइव लिपिड्स बता रही हूँ ना, दोनों की ऐसा हेडिंग नहीं दी हुई, बट टेबल में जो है ना उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। अब टेबल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को पीजी से लिखा हुआ है, पीजी मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और आगे जो है E2 उसकी टाइप, ठीक है, या F2 टाइप, ठीक है, जो उसकी लिखी हुई है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। लेकिन इसी के साथ अगर तुम लोग नीचे आओ तो देखो LT हैज बीन आल्सो गिवन, ठीक है, तो LT का मतलब है ल्यूकोट्राइन्स। इसी तरह से TX हैज बीन आल्सो गिवन, तो इस TX का मतलब है थ्रोम्बोसिन, ठीक है, तो T's एंड TS इज फॉर थ्रोम्ब। हमने जो है जी थ्रोम्बोक्सिन्स लिखने हैं, तो हमारे पास अगर ड्राइव लिपिड हैं, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स मैंने दोनों के लिख दिए हैं। तो थ्रोम्बोक्सिन्स को TX से रिप्रेजेंट किया गया, ल्यूकोट्राइन्स T से रिप्रेजेंट किया गया। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप्स नहीं है, बल्कि दो अदर जो है ना, दीज आर अदर देन द प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू बेसिकली ड्राइव लिपिड्स, ठीक है, ये इसके अलावा दो डिराइव लिपिड्स हैं। अब जी क्लिनिकल यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। हाई ब्लड प्रेशर में हम यूज कर सकते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में हम यूज कर सकते हैं, ब्रोंकायल एस्थमा में यूज कर सकते हैं, एनाफिलैक्टिक शॉक में हम यूज कर सकते हैं, अजीमा में यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक हाइपरेसिटी में यूज कर सकते हैं, अल्सर्स में, नेजल कंजेशन में, इनफर्टिलिटी में, और बेसिकली इंडक्शन ऑफ लेबर में वी कैन यूज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सारे इसके क्लिनिकल यूज हैं, विच आई वाज टेलिंग यू कि मेडिकल इंपॉर्टेंस जो है, मेडिकेशन और थेराप्यूटिक आई मस्ट से जो इंपॉर्टेंस है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ये सारे बेसिकली क्लिनिकल यूजेस हैं, ठीक है, और प्लस इस साथ इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, हर टाइप के। बेसिकली तुम लोग को शायद टाइप याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि PGE2 भी तुम लोग याद रखो, PGF भी याद रखो, या LTA4 भी याद रखो। सिंपली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अगर कभी आएंगे तो फंक्शंस आएंगे, तो वो तुम लोग सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, और प्लस ये जो फंक्शंस दैट हैव बीन गिवन, ठीक है, वो हम इसमें लिख सकते हैं जी। फंक्शंस वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, फिर इसके अलावा जी इसके अलावा जैसे कि इंडक्शन ऑफ लेबर है, ठीक है, इसमें है इसका रोल। इसके अलावा जो है जी, इसके अलावा प्लेटलेट की एग्रीगेशन में जो रोल है, ठीक है, तो यहाँ इनफर्टिलिटी में कोई रोल है, तो हम वो लिख सकते हैं एक साथ कंबाइन करके। तो नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ईच स्पेसिफिक बेसिकली सब टाइप फंक्शन, लाइक PGE2 के क्या होंगे, PGF2 के क्या होंगे, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं रिक्वायर, लेकिन ओवरऑल जो है वो लाजमी होने चाहिए बेसिकली, याद तुम लोगों को क्या क्या फंक्शन है। अब जो दो अदर हैं बेसिकली हम उस पर बात करेंगे। अब जो बेसिकली टू रिमेनिंग बेसिकली जो थ्रोम्बोक्सिन्स TX एंड ल्यूकोट्राइन्स LT, ठीक है, बिल्कुल एर्थोटेक टैबलेट्स होती हैं, उसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं डेफिनेटली। जो आप जो है मिस्ड अबॉर्शन के लिए, ठीक है, जो टैबलेट्स होते हैं, डेफिनेटली उसका मेजर कंपोनेंट होता है, क्योंकि यूट्रस की कंट्रैक्शंस को इंक्रीज जो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये ऐसी सब जो भी आपकी मीजोप्रेसिटॉल वाली टैबलेट्स हैं, उन सब में बेसिकली दे आर द मेजर इंग्रेडिएंट बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स। आप देखो जो थ्रोम्बोक्सिन्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉट बनाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली दीज आर द प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर, ठीक है। सबने सुना होगा कि जब आफ्टर एनी इंजरी बेसिकली, आफ्टर एनी वोंड बेसिकली देयर इज बेसिकली रिलीज ऑफ द ब्लड, और उस ब्लड के लिए डेफिनेटली एक क्लॉट लाजमी है, अदरवाइज द ब्लड वुडंट स्टॉप। तो ब्लड क्लॉट बनाने के लिए जहाँ पे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे आर द बेसिकली प्लेटलेट्स एग्रीगेशन फैक्टर। कि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने प्लेटलेट्स को इकट्ठा करना है एट द साइट ऑफ द इंजरी, ताकि प्लेटलेट्स कंबाइन होके एक क्लॉट बना सकें, ठीक है, दे क्लम्प टुगेदर, ठीक है, दे एग्रीगेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ क्लॉट। तो इस वजह से थ्रोम्बोक्सिन्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द blood clotting, and there are also some type of thromboxanes which have been produced by the platelets. तो ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर रहे हैं, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करवा रहे हैं, डिक्रीज कैम प्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसके अलावा मोबिलाइज द इंटरसेलुलर कैल्शियम। अब कैम्प जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक एडिनोसिन
फॉस्फेट। जो कैम्प लिखा हुआ है दैट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का मतलब ये होता है जो हमारे प्राइमरी मैसेंजर है ना हमारी बॉडी में, वो तो हमारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स अपना काम अगर खुद नहीं करते और बॉडी में अंदर जो सेल के अंदर किसी कंपाउंड को समझ लो अपना फंक्शन दे देते हैं कि वो परफॉर्म करें, तो उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर्स, यानी कि डायरेक्ट हार्मोन खुद काम नहीं कर रहा बल्कि जो इसका फंक्शन है वो बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा है या ऐसे कंपाउंड्स की एक्टिवेशन करवा रहा है जो हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है जी। तो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर। और कैम्प की एब्रिविएशन किसकी है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके अलावा जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है उसकी मोबिलाइजेशन भी करवा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉडी में आपकी दो जगहों पे कैल्शियम है, एक तो आपकी बोन्स में डेपोजिशन हुई हुआ कैल्शियम और एक आपके प्लाज्मा में है, ठीक है। जब आपका प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या ऐसे हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि फिर क्या करते हैं, आपकी बोन से कैल्शियम निकाल के प्लाज्मा में मूव करवाते हैं ताकि प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल हाई हो जाए। और जब आपके प्लाज्मा के कैल्शियम के लेवल सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और बोन के काम होते हैं, तो फिर देयर आर सर्टेन हार्मोन्स इन आवर बॉडी विच बेसिकली मोबिलाइजेस द कैल्शियम फ्रॉम आवर प्लाज्मा टू बोन्स, जो कि प्लाज्मा से कैल्शियम लेके आपकी बोन्स में डेपोजिशन करवाते हैं ताकि आपकी बोन का जो कैल्शियम है वो बेसिकली जो है ना जी वो पूरा हो जाए। थ्रोम्बोक्सिन्स जो हैं वो तुम लोगों के प्लाज्मा का हिस्सा है भाई, जैसे प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ब्लड में होते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपकी बॉडी में जो थ्रोम्बोक्सिन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द बेसिकली इन योर ब्लड, थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। जैसे तुम लोगों को थ्रोम्बिन टाइम वगैरह नहीं तुम लोग चेक वगैरह करते, ठीक है, तो इसी तरह से जो है थ्रोम्बोक्सिन्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन्स बेसिकली। तो इनकी जो बेसिकली प्रोडक्शन बेसिकली हो रही है वो प्लेटलेट्स बेसिकली इनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्योंकि आपके प्लाज्मा का हिस्सा है, आपके ब्लड का हिस्सा है, तो दैट्स व्हाई थ्रोम्बोक्सिन्स आर आल्सो पार्ट। अब थ्रोम्बोक्सिन्स ने ब्लड क्लॉटिंग करवा दी, ठीक है। अब फैटी एसिड जो है, स्टार्ट में ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाओ कि फैटी एसिड मैंने बताया कि एराकिडोनिक एसिड 24 कार्बन एक फैटी एसिड है जो कि क्या कर रहा है, कुछ एंजाइम्स उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, थ्रोम्बोक्सिन्स में और ल्यूकोट्राइन्स में। अब जो एंजाइम फैटी एसिड को थ्रोम्बोक्सिन्स में चेंज कर रहा है, ठीक है, वो वाला जो एंजाइम है ना वो बेसिकली इनएक्टिवेट हो जाता है अगर हम जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करें, जैसे कि एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ठीक है। अगर हम एस्पिरिन डिस्प्रिन वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारा जो एंजाइम है जो कि फैटी एसिड्स को थ्रोम्बोक्सिन्स में चेंज कर रहा है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि अपना काम करना छोड़ देता है, ठीक है जी। हम अच्छा जी, बुक में कहाँ है? बुक में जो है लास्ट पेज है लिपिड्स के चैप्टर का, ठीक है। बुक्स में जो आपका लिपिड्स का चैप्टर है उसका जो लास्ट पेज है वहाँ पे बेसिकली टेबल में सिंपली ये दिए गए हैं, हेडिंग में नहीं दिए गए। आखिरी जो सफ़ा है उसमें टेबल में TX लिखा होगा, एंटी ल्यूकोट्राइन्स के लिए, और TX थ्रोम्बोक्सिन्स के लिए, ठीक है। तो एज सच इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया इतना बुक में, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारा एसेंशियल फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड, वो जो है बेसिकली क्या करता है उसको कुछ एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस एंजाइम का भी नाम मैं तुम लोग को बता देती हूँ, साइक्लो ऑक्सीजनेज, ठीक है, COD, साइक्लो ऑक्सीजनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ठीक है। COX बल्कि लिख लो, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है कि फैटी एसिड को उसमें चेंज करता है, किसमें? साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम बेसिकली एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स में चेंज करता है, ठीक है। COX, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम बेसिकली, ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। अब ये वाला जो एंजाइम है मैंने ये बताया है कि ये इनएक्टिव हो जाता है अगर हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लें, एस्पिरिन, डिस्प्रिन। यही वजह है कि एस्पिरिन और डिस्प्रिन जब हम लेते हैं तो खून पतला करती हैं। सुना है ना कि एस्पिरिन डिस्प्रिन खून पतला करती हैं। वो क्यों खून पतला करती हैं, क्यों थिन करती हैं? इस वजह से कि जब आपने एस्पिरिन डिस्प्रिन ली तो आपका एंजाइम तो डीएक्टिवेट हो गया जिसने थ्रोम्बोक्सिन बनाना है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट बनाना है। जब ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट वहां पे नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका खून क्या हो रहा है पतला हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द
नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड द प्लेटलेट्स एंड द थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन्स बेसिकली प्लेटलेट्स बनाते हैं और ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जी एस्पिरिन डिस्प्रिन इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देती हैं जो कि फैटी एसिड से थ्रोम्बोक्सिन बनाता है, और एंजाइम का नाम मैंने लिख दिया COX साइक्लो ऑक्सीजिनेज, ठीक है। दिस इज द बेसिकली एंजाइम। अब यही वजह है कि जब कोई सर्जरी की जाती है तो उस टाइम भी फिर ये कहा जाता है कि हम ये जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं वो 1 वीक पहले लेना जो है ना वो ख़त्म कर दें, बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर कोई मेजर सर्जरी है और ब्लीडिंग के चांसेस फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं, एस्पिरिन डिस्प्रिन वगैरह, पेशेंट चाहे कार्डिक पेशेंट है, कोई सर्जरी है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप 1 वीक बिफोर योर सर्जरी यू शुड क्विट द दोज मेडिकेशंस, ठीक है। जब आप क्विट करेंगे तो चांसेस ज़ाहिर कम होंगे, क्योंकि ये मेडिकेशंस आपके खून को थिन कर रही हैं, तो जितना पतला होगा उतना फिर वेस्ट होने के चांसेस भी फिर ज़्यादा होंगे। और क्योंकि आपकी बॉडी में एस्पिरिन डिस्प्रिन थ्रोम्बोक्सेन्स तो बनने नहीं देंगी, तो ब्लड जल्दी फिर क्लॉट भी नहीं होगा बेसिकली। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स को अगर ये इनहिबिट कर रहे हैं तो फिर आपका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होगा, वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो ठीक है, जो स्टेबल में लिखा हुआ है ल्यूकोट्राइन्स LTA4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, LTCA लिखा हुआ है, तो उसके डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं। अब ल्यूकोट्राइन का मेजर फंक्शन क्या है? सबसे पहला इसका जो मेजर फंक्शन है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के बूस्टर्स हैं, समझ लो, मेडिएटर्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स आर आल्सो द डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स, दे आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द एराकिडोनिक एसिड, फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड से ही बन रहे हैं। इसको भी एंजाइम कौन सा बना रहा है? साइक्लोऑक्सीजिनेज बना रहा है, ठीक है। और इनका काम क्या है? बेसिकली प्रोडिकली ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो हैं हमारी मैस्ट सेल्स, ठीक है, बेसिकली दे आर बेसिकली दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द बेसिकली ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स इसको बना रहे हैं ल्यूकोट्राइन्स को, ठीक है। इसके अलावा लंग्स और इसके अलावा जो वस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है जी, वो बना रहे हैं बेसिकली LT की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिंथेसिस हो किससे रही है? बेसिक जो मेजर प्रिकर्सर जो पेरेंट मॉलिक्यूल है वो तो है आपका लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। इट इज रिलीज्ड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा जी कर क्या रहे हैं? कॉजेज द बेसिकली एडिशंस ऑफ द जो हमारी बॉडी का ये इम्यून सिस्टम के लिए बूस्टर्स हैं। और वाइट ब्लड सेल्स तुम लोग सबको पता है कि इन्फेक्शन कम्बैट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिकली वाइट ब्लड के साथ एडिशन करते हैं। एडिशन का मतलब बेसिकली साथ प्रेजेंट होते हैं ताकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मेडिएट कर सकें, बूस्ट कर सकें। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो प्रेजेंट होती है बेसिकली हमारी बॉडी में। देखो अब LTC है, ब्रोंक कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जो कर रहा है, and it of the एनाफिलैक्सिस, ब्लड ट्रांसफर के बाद जो एनाफिलैक्टिक शॉक होता है उसका भी कंपोनेंट है ल्यूइन, ठीक है। तो बेसिकली तो ये इम्यून सिस्टम के मैंने बताया था मेडिएटर्स हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर फंक्शंस। तो उसके लिए तुम लोगों को सब टाइप्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर LT ल्यूकोट्राइन्स याद रख लोगे तो दैट इज़ मच बेटर, बिकॉज वो फिर मिक्सअप हो सकते हैं। फिर तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ना, अगर तुम LTCA के फंक्शन बताओ, LTD के फंक्शन बताओ, LTE के फंक्शन बताओ, तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल। तो अगर सिंपल हम याद रख लें कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स PG के ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, चाहे उसकी सब टाइप्स अलग हैं। इसी तरह से LT के ये फंक्शन है, ठीक है, इसी तरह से TX के ये फंक्शन हैं। तो हमें उसके सब टाइप्स लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। जनरल हम बेसिकली जो है ना वो फंक्शंस करने हैं। अच्छा, जिनकी आवाज़ टक हो रही है, एडवाइज यू टू रीकनेक्ट योर कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन को अगर तुम रिकनेक्ट करोगे या रिफ्रेश कर लो तो फिर दैट वुड बी बेटर, ठीक है। अगर फिर भी नहीं ठीक होगी तो आई कैन ऑल्सो रिकनेक्ट ना, ताकि तुम लोग को वॉइस का इशू ना हो, बिकॉज वेबिनार इज टोटली बेस्ड ऑन द यू नो ऑनलाइन जो हमारे लेक्चर्स हैं, इसमें भी अगर वॉइस इश्यूज होगा तो फिर डेफिनेटली यू वुड नॉट बी एबल टू लिसन। सो those who have the voice related issue, they can simply they can reconnect.
अच्छा जी, ये तो था हमारा बेसिकली लिपिड्स का एक ओवरव्यू, ठीक है, चैप्टर का, जो दैट इज़ नाउ फिनिश, ठीक है, एंड टोटली वी हैव डन फ्रॉम द बुक, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो, और एज बुक्स सबके पास प्रेजेंट भी, मतलब कि डेफिनेटली यू ऑल हैव परचेज्ड, आई मस्ट से, अभी भी कोई ऐसा नहीं होगा लेफ्ट ओवर जिसने नहीं खरीदी होंगी। सो इसीलिए बुक से ही हम सिर्फ टोटल कंटेंट अपना कर रहे हैं ताकि तुम लोग के लिए आसानी हो। ऑलरेडी यू गाइज हैव बुक्स, तो उसके लिए जो है कोई बहाना ना हो कि नोट्स नहीं मिले या स्लाइड्स नहीं डाउनलोड हुई, ठीक है, तो इस वजह से हम सिर्फ बुक से ही पीडीएफ के फॉर्म में कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द इनफ। जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की बुक है, दैट इज़ वन ऑफ द गुड बुक्स, एंड जो उसमें कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनी बायोमोलिक्यूल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड्स हो, वो इतना है जो तुम लोग के एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर भी किसी ने पूछा था, तो आई मस्ट टेल यू कि प्राइमरी मैसेंजर में देखो ना, हमारे आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, कि हार्मोन अगर खुद काम कर रहा है, जैसे प्रोलैक्टिन का काम क्या है, ठीक है, प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि उसने जो है ना मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी जो बेसिकली मैसेंजर है, ठीक, ये हार्मोन्स हो गए, ठीक है, कि इसमें कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल नहीं है जो कि काम कर रहा है। देखो, जैसे कि तुमने अक्सा ने जी उसको जो है नीलम को ना बुक देनी है, ठीक है, अक्सा ने नीलम को बुक देनी है, तो अक्सा डायरेक्टली जाके दे देती है, तो अक्सा होगी प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है ना, बुक दे दी या कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, या बुक ही चलो दे देनी है, तो वो जी अक्सा ने नीलम को दे दी, तो अक्सा प्राइमरी मैसेंजर बन गई। लेकिन अक्सा ने अगर नीलम को बुक देनी है और साथ में वो शाजिया को कह रही है कि पहले बुक दे रही है शाजिया को, शाजिया तू जाके नीलम को दे देना, शाजिया क्या बन जाएगी, सेकेंडरी मैसेंजर, कि काम अक्सा का था, ठीक है, टारगेट नीलम है जिसको मिलनी है किताब, लेकिन अक्सा खुद नहीं कर रही, बल्कि अपनी बजाय उसने एक सेकंड मैसेंजर जो है वो रवाना कर दिया है कि आके नीलम को, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब डिफरेंस तुम लोगों को समझ आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर का। इज इट क्लियर अक्सा, द डिफरेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैसेंजर? इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो अपना काम खुद नहीं करते, बल्कि बॉडी में कैम्प, यानी कैल्शियम भी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है, ठीक है, और कैम्प एक कंपाउंड है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको एक्टिवेट कर देता है कि ये जो फंक्शन मैंने परफॉर्म करना था, जैसे थायरॉक्सिन है, ठीक है, तो थायरॉक्सिन ने बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है, ऑक्सीजन रेट को इंक्रीज करना है, वेंटिलेशन रेट को इंक्रीज करना है, तो वो बेसिकली कैम्प को बेसिकली बॉडी में मेडिएट कर देता है कि वो क्या करे, कैम्प क्या करे कि जो थायरॉक्सिन के फंक्शंस हैं वो बेसिकली कैम्प सारा फिल कर। तो जी दिस इज द डिफरेंस ऑफ द बेसिकली प्राइमरी मैसेंजर्स एंड सेकेंडरी। सो नाउ द चैप्टर ऑफ द लिपिड्स has been finally finished, और इसमें तुम लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन सिंपली आस्क, ठीक है, व्हाट आर एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि क्वेश्चन तो पूछोगे तभी जब जाके इसको रिव्यू करोगे, वैन यू ओनली रिव्यू द लेक्चर, ठीक है, तभी तुम लोग को पता चलेगा हाँ ये चीज़ तो, ये लाइन तो हमें समझ नहीं आई, ठीक है, वी कैन आस्क। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, जो कि उन्होंने विदाउट एनी बैकग्राउंड बीच में बस डाल दी हैं, जैसे DHAP था, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जब हम लिपोप्रोटीन्स वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उन चीज़ों को जो मैंने कहा जो हम स्किप कर रहे हैं, उसके अलावा एपोप्रोटीन्स वगैरह के अलावा अगर जो तुम लोग को नहीं समझ आएगी तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके अलावा सैटरडे को टेस्ट है, वेल प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोटीन्स के बाद हम फिर ऐसा करेंगे, लिपिड्स का टेस्ट रख लेंगे, बट वी विल मेक इनटू द हाफ चैप्टर्स, ठीक है, ताकि तुम लोगों के लिए भी आसानी हो जाए और टेस्ट बहुत अच्छा सा तुम लोग परफॉर्म कर सको। सो आई डोंट वांट कि जी आप बस टेस्ट 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 दो, आई वांट योर परफॉर्मेंस बेसिकली। द ओनली पर्पस ऑफ टेस्ट इज टू मेक यू बेसिकली मेमोराइज द लेक्चर, और बेसिकली जो है लर्निंग तुम लोगों की जो है ना वो बेसिकली इंक्रीज हो, याद रख करो उसको, ठीक है, और फिर उसके बाद क्विज का मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जज हो कि कितना तुम लोगों को आता है, बेसिकली स्कोरिंग डेफिनेटली उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी तुम लोगों की। तो जी सैटरडे को वी हैव द टेस्ट, रिपीट कैम नहीं, वो कैंप है, एंड दैट हैज आल्सो बीन गिवन। जो टेबल तुम लोगों का दिया हुआ है थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन में, जो टेबल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कैंप, ठीक है, तो कैंप की एब्रीवेशन मैं बेसिकली लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को याद रहे, साइक्लिक एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये है बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर। सॉरी, दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर कैंप, CAMP, ठीक है। तो इसकी एब्रीविएशन मैंने लिख दी है ताकि तुम लोगों को बेसिकली याद रहे, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड दैट इज बेसिकली कैंप, कि खुद नहीं काम कर रहा और सेकेंडरी मैसेंजर से कह रहे हैं, कैंप से कह रहे हैं कि वो अपने फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म करे, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर। तो जी लिपिड्स के चैप्टर में स्टार्टिंग फ्रॉम द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स, फिर इस पर लिपोप्रोटीन्स, कंस्ट्रक्टिव कार्डियोप्रोटेक्टिव कौन सी है लिपोप्रोटीन, और कार्डियो डिस्ट्रक्टिव कौन सी है लिपोप्रोटीन, और प्लस बाइल क्या है, बाइल सॉल्ट्स क्या हैं, बाइल एसिड्स क्या हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो है आपके डिराइव लिपिड्स लाइक थ्रोम्बोक्सिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक लिपिड, ठीक है। और मेक श्योर कि हम इसको जो है ना, हमारी जो बुक है, हम उससे सारा हम बेसिकली उसी से तुम लोग याद करो, ठीक है। जो हमारा ये लिपिड्स का चैप्टर है, तो एंड मेक श्योर कि तुम सबके पास बुक्स हैं, अगर नहीं है तो ट्राई टू परचेज इट, ठीक है। अभी भी आई कैन से इजीली कि अभी बहुत से शायद लोग हों जिन्होंने अभी तक ना खरीदी हो, ठीक है। बट दी स्लाइड्स आर नॉट इनफ, बिकॉज यहाँ से पढ़ना जो है बेसिकली आई विल फील द बेसिकली डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्रॉम दी स्लाइड्स। So they are really basically, that is the PDF version, and that is really, and sometimes it seems to be that is I must say almost invisible type, कि वो आप इतना इजी नहीं है कि आप इसको सामने कंप्यूटर खोल के, लैपटॉप खोल के या मोबाइल खोल के आप इससे करोगे। तो ट्राई टू परचेज द बुक्स, दिस इज़ फॉर दोज हु हैव नॉट येट परचेज, जिन्होंने ले ली है वो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छा है। तो आप अपनी बुक से ही जो है ना वो चैप्टर करो, और जो नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह इसके बाद स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। दैट विल बी द न्यूक्लिक एसिड्स, दैट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर लिपिड। वेडनेसडे को इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वो भी तुम लोग की फाइक अहमद की बुक में है, ठीक है। अपने टेस्ट तैयार करो और उसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड्स को भी रिव्यू करो, ताकि टेस्ट स्टार्ट होने से चैप्टर या सेशन हमारा जो है वेबिनार का वो स्टार्ट होने से पहले तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने ये एक पेज पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड्स का, हमें जब मैं लेक्चर दे रही हूँ तो तुम लोग उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ सको कि ये चीज़ें हमें नहीं समझ आई, बट तुम लोग तो पहले क्या पढ़ना है, तुम लोग तो शायद बाद में भी नहीं उसको पढ़ते। तो इस वजह से आई विल एडवाइस कि हमने जो है जी अपना एटलीस्ट अपना जो कोर्स कंटेंट है उसको तो हमने बेसिकली कवर करना है, ठीक है। वी हैव डन विद द 3 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तीनों जो है ना हमारे बहुत बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। कोर्स कंटेंट के हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, और वाइवा के हवाले से, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हवाले से। तीनों मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं, तीनों एनर्जी गिविंग बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और जो तीनों हैं यही समझ लो कि बेस है तुम लोगों की बायोकेमिस्ट्री की कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ठीक है। तो तीनों को ही हमने जो है बेसिकली जो है ना वो क्या करना है कि हमने जो है वो एक्सटेंसिव वे से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल इसको कि तुम लोग की टिप्स पे हों इसमें जितनी भी चीज़ें हैं। तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि इसी तरह से जो हमारा प्रोटीन्स का टेस्ट है उसमें अमीनो एसिड्स, उनकी क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, अमीनो एसिड के सेपरेट फंक्शंस, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो है। इसके अलावा जो हमारी डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स हैं, ऑल दीज विल बी द पार्ट ऑफ योर टेस्ट, ठीक है। एंड टेस्ट इज़ ऑलरेडी डिलेड, सो यू शुड प्रिपेयर, ठीक है। तो प्रोटीन वाले चैप्टर का बिल्कुल होगा, ठीक है, सैटरडे को होगा। और जो है जी टेस्ट का स्केड्यूल तुम लोगों से शेयर हो गया, आई थिंक दैट हैव बीन शेयर्ड कि वीकेंड्स पे टेस्ट रखा गया है। अगर नहीं शेयर हुआ तो आई विल सेंड टू द GR, ठीक है। नीलम को मैं सेंड कर दूंगी अगर नहीं हुआ तो, अदरवाइज योर कोऑर्डिनेटर हैज़ बीन शेयर्ड, आई थिंक। तो जी आपके टेस्ट होंगे सब वीकेंड्स पे, ठीक है। सैटरडे को वी हैव द टेस्ट ऑफ बायोकेम,
तो आई विल शेयर यू द टाइमिंग्स ऑफ द टेस्ट, ठीक है, और पैटर्न पहले ही बता दिया कि मोस्टली एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और टोटली फ्रॉम योर बुक, ठीक है, टोटल कंटेंट तुम लोग की बुक से होगा, तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम द बुक। एनी इफ एनी क्वेश्चंस वेलकम, because we have the time, few minutes are left and we have the time, we can discuss if you have any questions. मेक श्योर कि तुम लोगों का जो लॉगिन प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। टेस्ट बिल्कुल प्रोटीन वाले चैप्टर का है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और अपने टेस्ट से पहले आपके जो शालीमार लर्निंग पोर्टल पे जो आप लोगों के लॉगिन्स हैं, प्लीज गो देयर एंड ट्राई टू लॉग इन, बिकॉज अगर सिर्फ टेस्ट वाले दिन जाके लॉग इन किया और उस टाइम प्रॉब्लम आ रहा है जी हमारा लॉग इन नहीं हो रहा, तो उस टाइम तो आपका टेस्ट तो सिर्फ ओपन होगा फ्यू मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स का टेस्ट है तो इट विल ओनली ओपन अवेलेबल टू यू फॉर 20 मिनट्स। कोई एक्स्ट्रा टाइम तुम लोग को वहाँ नहीं मिलना। ऐसा नहीं कि जब चाहे जाके उसको आप तुम लोग ओपन कर लो और सॉल्व कर लो। तो इसके लिए जो है ना, तुम लोग पहले से किसी का लॉगिन का इशू है, किसी का लॉगिन नहीं हो रहा, तो ट्राई टू कंटेक्ट योर ऑफिस ऑफ द कॉलेज, ठीक है। ऑफिस में कंटेक्ट करो कि लॉगिन का कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, because I'm taking the test of the BSN and at the time of the test most of the students are trying to call or trying to text, we are not able to log in, ठीक है। तो लॉगिन के प्रॉब्लम्स भी पहले चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि सेम डे और सेम डेट पे जाके बस सेम टाइम पे बिल्कुल आप कर रहे हो। तो उसके लिए पहले से ही लॉगिन हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिर शेयर कर ले अभी, बिकॉज वी हैव द टाइम, बिकॉज 2-3 डेज हैं अभी सैटरडे में। तो अभी लेक्चर के बाद तुम लोग जो है वो अपना लॉगिन करके चेक कर लो, किसी को प्रॉब्लम है तो वो फिर अपने लॉगिन्स का इशू रिजॉल्व करा रहे, क्योंकि सम टाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के लॉगिन एक्सपायर भी कर गए थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है आई विल रिकमेंड कि तुम लोग जो है जी अपना पहले से ही जो है ना उसको रेडी रखो बिल्कुल। फ्रॉम दिस सैटरडे, ठीक है, आई विल इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट सैटरडे से नहीं है मेरे ख्याल में, टेस्ट जो है वो इसी सैटरडे को है, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म यू। टेस्ट का मैं तुम लोग को बता दूंगी, बाकी तुम लोग अपना लॉगिन्स जो है ना वो उसको बस तुम लोग रेडी रखो एंड ट्राई टू विजिट द पोर्टल। समटाइम्स पे अनाउंसमेंट्स भी होती हैं, चैप्टर्स अपलोड वगैरह भी होते हैं तुम लोग के टॉपिक्स। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ रिकमेंड। Okay, fine. If this Saturday, if you guys have the schedule, then this is fine. Schedule है तुम लोगों के पास, अगर इस सैटरडे संडे बायोकेम नहीं है, पैथो और माइक्रो का है, ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे को है अगर स्केड्यूल में, तो दैट इज ओके, ठीक है। फिर तो तुम लोगों के पास और टाइम है, फिर तो तुम लोगों को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए प्रोटीन्स का टेस्ट, ठीक है। अगर इस सैटरडे नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे है, तो यू हैव द प्लेंटी ऑफ द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, आई मस्ट से। फिर तो टेस्ट तुम लोगों को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से जी वी आर बेसिकली, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, ठीक है। और नेक्स्ट वेडनेसडे को वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, डीएनए आरएनए, और न्यूक्लिक एसिड्स हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कमिंग अप जो हमारा वेडनेसडे आएगा, ठीक है। और आई विल चेक द टेस्ट स्केड्यूल, ठीक है। इफ इट इज़ नेक्स्ट सैटरडे तो ठीक है, ओके फाइन, आई विल अपलोड इट और आपको नेक्स्ट सैटरडे ही अवेलेबल होगा, ठीक है। बट उससे पहले तुम लोग जो है अपने लॉगिन्स वगैरह बस रेडी कर लो तुम लोग। ओके, गो एंड चेक योर लॉगिन्स, और उसके बाद जो है ना डू प्रिपेयर फॉर प्रोटीन टेस्ट, बट एज वेल एज प्लीज़ लुक योर लिपिड लेक्चर ऑल्सो, ताकि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड या बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स में से अगर कोई हमारी जो है जी कोई लैप्सेस हैं, कोई कमियां रह गई हैं, तो हम उसको भी फुलफिल कर दें। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसी स्टेज पे हम उसे कर दें, बजाय इसके कि जब हम उसका टेस्ट रखें तब तुम लोग कह रहे हो कि हाँ जी दीज वर द फ्यू टॉपिक्स विच आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इस वजह से आई एडवाइस यू के साथ साथ तुम लोग लिपिड्स को भी देखो, ठीक है, चाहे एक पेज दिन का करो, 2 पेज करो, बिकॉज वी हैव ओनली वन क्लास, बेसिकली वंस इन अ वीक वी हैव द लेक्चर। सो जो बाकी जो आपके हफ्ते के दिन हैं उसमें कम अज़ कम जो है इसको प्रिपेयर करो। तो सी यू इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है। थैंक यू।